annual occasion. चलिए आप सभी का स्वागत अभिनंदन आज के इस बहुत खूबसूरत सी शाम के अंदर। इस दुनिया के तमाम खूबसूरत रिश्तों में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है बातों का। बातें करने के लिए हमेशा हमें किसी न किसी की जरूरत होती है। मतलब अकेले बड़बड़ाया जा सकता है लेकिन बातें नहीं की जा सकती है, राइट? तो इस दुनिया में सबसे पहले बातें आई, इन बातों को सबसे पहले इस पन्ने में उतारा गया, फिर बहुत सारी किताबें बनी, फिर उन किताबों को हमने पढ़ा और हमने पढ़कर की ये 6 महीने की जर्नी तय की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस 6 महीने की जर्नी को हम कैसे वाइंड अप करते हैं, कैसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। As we gather here today, we honor the past, acknowledge the present, and welcome the future. We are proud to recognize the achievements of our third batch who have paved the way for us. We celebrate the Yellow Sapphire batch who are the cusp of achieving greatness, with many of them aspiring to crack the prestigious NORCET 9. And we extend a hearty welcome to our noble coronal batch who are just beginning their journey with us. तो अकेडमी नहीं जाना से लेकर अकेडमी से नहीं जाने तक का सफर आज समाप्त होने पर है और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल मतलब अर्थ बैच, येलो सफायर बैच और कोरल बैच आज तीनों हमारे साथ हैं। तो तीनों समय हमें बहुत कुछ सिखाकर जाएंगे और भूतकाल ये सिखाएगा कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, और वर्तमान हमें वर्तमान में जीना सिखाएगा और भविष्यकाल हमें भविष्यकाल की उम्मीदें देकर के जाने वाला है। It is my privilege to welcome our esteemed director, Sir Mr. Bhupesh Arora, who has been the guiding force behind NNL Academy's success. Sir, your vision and leadership has inspired us all, and we are grateful for your presence here today. Hello everyone, how are you? यार लग रहा है खाना नहीं खाया। खाना कैसा था? How was the tea? Yeah, good. So today is the most special day when we have a student of various batches all together. The super mentors, the Margdarshaks, the mentors, Earth batch, and the warriors, Yellow Sapphire, and the future heroes, Coral batch student. First, let's have a round of applause for everyone. Along with the best of the best mastermind faculties, Dr. Sakshi, Dr. Mohit, Miss Sabina, Miss Mithlesh, Miss Chitra, Dr. Sudhi, and our entire NNL Academy, scientific and academic team. I welcome everyone to the Ashirwad session. This session is first for our proud Earth batch students who made us proud. Thank you students for making us proud. You will be always considered as our first proud batch student. Thank you so much. As they are starting a new beginning in life, followed by our YSP students who are going to appear on NORCET 9.0, and definitely you all are going to make us proud with your best achievements in NORCET 9.0. Yes or no, Yellow Sapphire? Yes, sir. अरे ऐसे तो नहीं होगा भाई. Yes or no? Yes, sir. Good. अब हो जाए. Okay. Well, we believe preparation is the invisible key of achievement. Behind every success story are countless hours of dedication, discipline, and hard work that nobody sees. Remember, each small effort you make in the last 6 months is going to build the foundation for tomorrow's victory. When challenges seems overwhelming, remind yourself why you started and the picture prize you are going to finish and see at the finish line. And you can also see the finish line in front of you as our Margdarshaks and as our super mentors. Stay focused, stay determined. Every moment you have invested in the preparation at NNL Academy is enough to achieve your goals. To conclude, the race is not over because the preparation is not complete, and until we all put our best 30 days by attending fast track classes,
चलो मिलकर पढ़े सेशन and simultaneously doing rigorous practice through slide test series. So with this, I would like to start this today's Ashirwad session. So welcome you all once again. Thank you. देखो, सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा निशानी यही होता है कि जहां से आप पढ़े हैं वहीं पर आप ऐसे गेस्ट जा रहे हैं, राइट? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, जहां से निकले हैं आज उन्हीं के स्टेट में उनके नाम का एक चैप्टर है। तो जब आपका सिग्नेचर अपने ऑटोग्राफ में बदल जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि आप सफल हो चुके हैं, आप महान बन चुके हैं। Yeah, blessings are always there. वो तो मतलब that's a part of the game. But युद्ध नहीं जिनके जीवन में, and युद्ध मतलब challenge to it. युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो रण से भागे होंगे, या तो रण को तोड़ा होगा। तो ये जो अचीव किया है, वो अचीव तभी किया होगा if they have worked for it. थाली में परोस के तो किसी को कुछ नहीं मिला, तो hats off to them that they have worked for it and they have achieved it. And very soon I am very hopeful कि आप लोग भी यहाँ पे आके मंच पे ये सब achieve करेंगे and अपना you'll make yourself and your families proud of it. And hearty wishes and congratulations to all the toppers. Now it's time to invite the outstanding rank holders of the NORCET 8 Earth batch to join us on stage for felicitation ceremony. Congratulations. ये तालियां तुम्हारे लिए भी बजनी चाहिए, तो अपने लिए जितनी एक्सपेक्ट करते हो शायद से उतनी तेजी से मुझे आवाज आनी चाहिए। अकेडमी का तो मैं यही कहूँगी कि मैं यहाँ पहुँची हूँ और इसका पार्ट रही हूँ, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ कि मेरा फर्स्ट मेंस था जिसमें मैंने क्लियर कर लिया और एम्स गुवाहाटी मुझे मिला है एज अ सेलेक्टेड ऑफिसर। और जो अकेडमी का सपोर्ट रहा है वो तो बयान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा रहा है हर एक स्टेप पर। कहीं पर जो रिवीजन क्लासेस है या कैसे टाइम टेबल बनाना है, सारी चीज़ें। और फैकल्टी तो बस ऑसम, जो पढ़ाया है बेस्ट पढ़ाया है और एज इट इज आया एग्जाम। बहुत बहुत शुक्रिया। So good evening बच्चों। It's so good to see all of you here, to see all of you back in the academy. It feels like it's home, है ना? It is a farewell for so many, but अभी journey बाकी है ना? अभी your journey towards becoming that person to whom people will look up to is now going to begin. You are now going to go out into that world जहाँ पे जो सीखा है अब उसको practice करना है। Right? जितनी भी values सीखने में it's not just the medical information which you have taken, the values which you have imbibed while you were here in the nursing academy, because I feel nursing academy is not just an academy which is teaching you, giving you knowledge. It is also giving you those values which you are going to keep with you throughout your life. So this place and whatever values you've learned, अब वो time आया है जब you are going to go there. जैसे हमेशा कहते हैं ना कि doctors are there to treat, but nurses are there to heal, right? So you people will be the ones जिनके ऊपर the entire medical system is based upon. And not just medical system, the last hope of every patient is not the doctor. Doctor एक बार आएगा, आके चला जाएगा. But you people are the ones who will be there with the family. You are the hope for the family. So go there and जैसे यहाँ पे you people have made us proud.
make us proud there also. And to all the students, those who are now going to give your NORCET exam, only 3 things. Consistency, that is very very important. Right? यहाँ से जाने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे या अब हम टेस्ट नहीं देंगे. Very very important to give your tests, very important to stay consistent, very important to stay disciplined, and very important to believe in yourself. Right? So just believe in yourself. इनों में और तुम में कोई डिफरेंस नहीं है. तुम्हारा आज फेयरवेल नहीं है बेटा, तुम्हारी भी आज नई जर्नी शुरू हो रही है, बिकॉज वी वांट टू सी यू हियर एट आरंभ. सो आरंभ के लिए आरंभ कर रहे हो आज, राइट? सो दिस इज व्हाट वी वांट. सो आज फेयरवेल कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आरंभ में वी वांट ऑल ऑफ यू टू बी स्टैंडिंग हियर. एंड आई ऑलवेज से दिस क्लास में भी, आई ऑलवेज से हमें ना ये पूरी दीवारें भरी हुई चाहिए अपने बच्चों से. हमारी एकेडमी की दीवारें कम पड़ जाएं, लेकिन सिलेक्शन इतने हो कि हम सोचें आप लगाएं कहाँ बच्चों की फोटोग्राफ्स. सो दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड द बैच हु हैज जस्ट कम इन. दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. Trust that you are at the best place. Trust in whatever knowledge you are getting, and trust in yourself. That's all what is required. So my last words, जो बाबू मुशाई के भी last words थे. जिंदगी बताओ सर. अच्छी होनी नहीं. जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी लंबी होनी चाहिए. So go out there, live your dream, and dream big, dream bold, and just conquer the world there. So thank you all. Now, may I request Upesh sir, Dr. Sakshi and Dr. Swati to kindly felicitate our topper, Mr. Aditya. एकेडमी आया था. मैं एकेडमी से पहले नॉर्सेट 7 का मेंस हुआ था, उसमें आया था, तो सेंटर यही आया था पास. तो मैंने सोचा एक बार एकेडमी देख के चलते हैं. सर को में थे तो एकेडमी देखने आया, फिर देखा कि एकेडमी बहुत अच्छी है. सर मैं इनका सबका नाम सुना ही था पहले से. और फिर रिजल्ट आया, जैसे ही मैं एक या 2 मार्क्स से रह गया था. नॉर्सेट 7 में 1800 कुछ रैंक थी मेरी. तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं तो गलती कर रहा हूँ. मैं पढ़ तो बहुत कुछ रहा था, लेकिन एक्यूरेट नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत मिसिंग था. तो यहाँ आने के बाद मुझे जो भी चीज़ें मिली वो बिल्कुल एक्यूरेट मिली. और जो भी था मैम, जो डेटा था और जो भी था बिल्कुल एक्यूरेट था. और उसी की वजह से मेरा भाई ऐसे मत बोले. लेकिन आज के जमाने में जो ओपीजे को आपने जो धुन बनाया है ना, उसको सारा जमाना गा रहा है. तो उस पर कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप संभालिएगा. मैं कि नवल होकर पुराना जा रहा है, तुमको सूचित हो. कि नवल होकर पुराना जा रहा है, तुमको सूचित हो. पुनर्यौवन पुराना आ रहा है, तुमको सूचित हो. कि जिन्हें सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ, जिन्हें सुनकर तुमने कहा था मौन हो जाओ, वो धुन सारा जमाना गा रहा है, तुमको सूचित हो. और वो जो पंक्तियां मैंने यहाँ पढ़ी थी, वो फॉरएवर यहाँ रहेंगी मैम. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका. Next, I would like to call upon Miss Sabina. It's a pleasure to have you here. So again, very good evening everyone to the Earth batch, Sapphire batch and Coral batch. Earth batch, you all, आपने सब ने हमें बहुत proud feel कराया है. जो dedication से आपने मेहनत करी, you have finally succeed in your journey. And 2 लाइनें बोलना चाहूँगी मैं अपने कोरल और सफायर बैच की,
क्योंकि ये ही हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। तो अभी मेरे दिन संघर्ष के हैं, ज़्यादा उम्मीद ना रखना मुझसे। अभी मेरे दिन संघर्ष के हैं, ज़्यादा उम्मीद ना रखना मुझसे। और मैं चाहती हूँ अगली 2 पंक्तियाँ आप जब भी अपने आप को मिरर में देखो, आंखों में आंखें डाल के बोलना, जीत निश्चित है, जीत निश्चित है, समय आने तक सब्र रखना बस। हम आपको कैसे जाने बिल्कुल नहीं। तो कुछ पंक्तियां आपके लिए भी है मैम, और मैम के लिए जो मैं पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो एक बार बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए उसके लिए कि हमने कब कहा कि वो सच हमारा हो जाए। हमने कब कहा कि वो सच हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि गुजारा हो जाए। कब कहा कि वो सच हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि गुजारा हो जाए, कि हम जिसे पास बिठा ले वो बिछड़ जाता है, कि हम जिसे पास बिठा ले वो बिछड़ जाता है, आप जिसे छू लेती हैं वो आपका हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रियदर्शी मैम, प्लीज ब्लेसिंग्स। The past, the present and the future, a very all the best. When you choose NNL1, you people are already one step ahead among your competitors. So stick on to NNL1, definitely success is yours. All the very best. NNL Academy also. सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूँ कि जो मेरा रैंक है वो 35 है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने कभी कुछ अगस्त 2024 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि NNL का कोई बैच शुरू हो रहा है, थर्ड बैच शुरू हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं और पढ़ते हैं। और ये बैच अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, फरवरी में इसका जो था खत्म हो गया। मैंने वहीं से शुरू करा, वहीं से एंड करा। और जो हमारे CRE के टीम में सर मोहित सर, CRE में मेरा रैंक 47 था। सर ने वहाँ से पेपर बना के भेजा है। हाँ जी, मुझे ऐसा ही लगा था। और सर 9 का भी हमारे टीचर्स ने ही बनाया। ये कौन कहता है भाई? हाँ ऐसा जो हमारे टीचर बोलते हैं अगर आप बस वही कर दोगे ना तो हो जाएगा। सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, यूट्यूब फालतू के इधर उधर लेक्चर्स वो देखना बंद कर दो। जो NNL के नोट्स हैं बस वही पढ़ो, जो हमारे टीचर्स बोल रहे हैं बस उसी पे विश्वास करो। वही इंफॉर्मेशन सबसे ऑथेंटिक है, बार बार कंफर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैम इसका आंसर सही क्या है गलत क्या है। जो एक बार लिखवा दिया बस वही पढ़ो, वही पेपर में टिक करके आना, वही सही हो जाएगा। मैंने यही करा था, मुझे नहीं पता मेरा रैंक कैसे आया हुआ है। सुन लो ये सब आया। चलिए आंटी की आपको बेटी इतनी वहाँ मतलब लाइक सक्सेस हो गई है, कॉलेज मिल गया है या यस, ये वर्चुअल में आपने कैसे स्टडी? वर्चुअल में आपने कैसे स्टडी किया? अर्थ बैच वर्चुअल में थे ना? वर्चुअल में मैंने कुछ मतलब स्टडी किया। पहले लाइव लेक्चर चलते थे। सबसे पहले तो हमारे टीचर्स ने हमें आदत बनाई 7-8 घंटे बैठने की। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लासेस होती थी। तो टीचर्स हमारे को सबीना मैम का एक टॉपिक था BT, जिसमें से 5-10 क्वेश्चन आ गए कुछ नहीं करना, और जो हमारे टीचर्स पढ़ा देना, जो हमारे नोट्स हैं ना बुकलेट्स 80-85 पेजेस की, वही हमारे ग्रंथ हैं, उनको पढ़ कर जो ग्रंथ पढ़ के भगवान मिलते हैं ना, वही हमारे नोट्स ग्रंथ है, उसको पढ़ के यूज मिल जाता है। May I now request Miss Mithilesh and Dr. Sudhir to please come up on stage and felicitate Miss
Anita along with Rupesh sir. Thank you. बोला ठीक है 4 महीने तू मेहनत कर ले, उसके बाद मैं कंफर्म हूँ तेरा सिलेक्शन है। तो मैंने स्टार्ट की, स्टार्टिंग 10 दिन मेरे को लगा कि नहीं ये अच्छी नहीं है, मैं चेंज नहीं करूंगी कोचिंग। ये अच्छी नहीं का मतलब साक्षी मैम नहीं कोचिंग अच्छी नहीं है। तो फिर इन्होंने बोला कि तू 1 महीना कंटिन्यू कर, तेरे को समझ में आ जाएगा। मैंने कंटिन्यू प्रिपरेशन की, मेरे को लगा कि नहीं आप सही थे, मैं गलत हूँ। तो मैं इनको भी धन्यवाद करूंगी, मेरे साथ साथ ये भी पढ़ते थे रात के 2-2 बजे तक। अच्छा, तो सफल महिला के पीछे एक सफल पुरुष का भी हाथ होता है। बहुत मेरा बिलीव उस हिसाब से था, तो मैंने उस बेसिस पे बोला था कि ऑल्दो मैं नर्सिंग की फैकल्टीज को तो नहीं जानता, बट ये मेडिकल फैकल्टीज है, मारवा सर इज गॉड ऑफ मेडिसिन, राइट। सो मेरे को इस फैकल्टी के अकॉर्डिंग था कि मतलब ये फैकल्टी बेस्ट है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज मारवा सर पढ़ाएंगे, आप लगेगा आपको कि मतलब क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब उस हिसाब से पढ़ाएंगे कि आपको थोड़ा पेशेंस रख के वो चीजें समझनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज द लाइक नॉलेज भंडार है नॉलेज के, तो उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी। मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई भी चीज है जैसे आप बोलते हो कि मतलब वो टोन वगैरह वो सब जो चीज, तो वो मैम ने जो गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स को बहुत एक अच्छे से बना दिया। सर अपडेट कोई भी चाहिए पीएसएम में सर का एक वीडियो देख लो। मुझे तो ऐसा लगता है कभी-कभी गवर्नमेंट के पास बात भी जाती है आप लोग ऐसे मैसेज करते हैं मेरे अगर अपडेट्स का कोई भी पीएसएम का क्वेश्चन आएगा सर की नोट से मैं, और जैसे कोई मैन्यूअर वगैरह है वो मैम से ही एक्सप्लेन मतलब जो भी समझे मतलब बोले तो फैकल्टी आपके पास बेस्ट है। मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा आपको बस मेहनत करनी है, रिवीजन करो। और दूसरी बात एक मैम सबीना मैम बोलते हैं जितनी ज़्यादा हो सके आप ट्यूशन सॉल्व करो, इनके मैं एक्चुअली बाकी आप आपके फैकल्टी है जैसा वो बोले वैसे करते जाइए, सिलेक्शन पक्का है। बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि सबसे पहले इनको थैंक यू कि इन्होंने हमें प्राउड फील कराया है, हमें ये चीज़ सच है कि जब आप मतलब किसी गोल की तरफ जाते हो ना तो वो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता कि कितने लोग आपके पीछे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अकेडमी है, घर पे आपके पेरेंट हैं, किसी के भाई सपोर्टिव है, किसी की बहन सपोर्टिव है, बट देयर शुड बी अ सपोर्ट होता है ना, ठीक है। सेकेंड थिंग मैं ये बोलूँगी कि किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टडी मटीरियल। एक स्टडी मटीरियल लेना, अभी किसी स्टूडेंट ने बोला था कि ग्रंथ से भगवान मिलते हैं ना, तो सेम चीज अप्लाई करनी है, अपने ही नोट्स को ग्रंथ समझना है एंड अपना फ्यूचर आप यहाँ पर देख रहे हो। मतलब वो जो लिस्ट में नाम आते हैं ना वो मंगल ग्रह से नहीं आते, ये चीज तो क्लियर हो गई है, वो हमारे ही बीच में से कोई होता है जो सेलेक्ट होता है, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। एंड मैं आपसे पर्सनली भी ये मतलब बोलूँगी, एडवाइस करूँगी कि जो टॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं ना 100% उस पर भी रिलाई ना करें, क्योंकि सबका मतलब ब्रेन अलग है, सबकी कैपेबिलिटी अलग है, वो आइडियल है, उनको फॉलो करना है, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना है, मॉडिफाई करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उनकी हैबिट्स लेनी है और उनकी हैबिट्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, ताकि अगर आप देखो हर कोई, अगर हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो कोई एक स्टेयर जंप जाता है, कोई 2 स्टेयर जंप जाता है, देयर मे बी डिफरेंस कि आप फर्स्ट स्टेयर पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, अल्टीमेटली गोल सबका ही है, तो सबके एफर्ट्स उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमेशा अपने में बिलीव रखना है दैट यू कैन डू एंड यू विल डेफिनेटली। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लो, किसी भी इंसान को देख लो, एक ही चीज याद रखना, देयर शुड बी हार्ड वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई की नहीं है, बस इतना ही बोलोगे, अपने ऊपर बिलीव करो, अपने हार्ड वर्क के ऊपर करो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं आपको एक सर्जन वाले में ही आपको ब्लेसिंग दूंगा। एक्चुअली क्या होता है ना, सर्जरी में जैसा होता है ना, ऑपरेशन में सर्जन जाता है ना ओटी में,
हमारा काम था ऑपरेशन करना। आई थिंक हमारा मास्टरमाइंड एंड ऑल द टीम्स अच्छा से ऑपरेशन करवा ली। एंड अभी ये कि तुम्हारा काम की पोस्ट ऑपी क्या है, पोस्ट ऑपरेटिवली आपको केयर करना है, क्या करना है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, ओके, पूरा स्ट्रिक्ट रहना है। एंड जैसे कोई इन्फेक्शन जैसे ना हो, दैट मींस पूरा स्मॉल स्मॉल चीज को जैसे केयर रखते हैं हम पूरा आईसीयू में, तो आपको अभी आपका नोट को इस हिसाब से इतना बार रीडिंग करना है, अच्छा सा केयर करना है। ये मेरे आपके लिए ब्लेसिंग्स था। देखो आता है हमारा जो आज डेढ़ है टॉपर्स, तो उनमें क्या है ना, एक पेशेंट जब आता है तो उन्होंने उनको इंजेक्शन करके ओटी में दे देता है। दैट मींस ऑलरेडी उनके पास तो नॉलेज था, एंड ओटी में हम वो चीज को देखा है, दैट इज अ डिफरेंट केस। अभी आपका ये कांसेप्ट है, आपका स्किल को डेवलपमेंट करना है, जैसे पेशेंट को ओटी में कुछ भी दिक्कत ना हो। दैट मींस कि अभी आप तो ऑलरेडी टैलेंटेड है, बट अभी आपका नॉलेज से बेटर आपका स्किल है, और स्किल को डेवलप करिए। Coral badge. Yellow the badge. Coral. Where is Coral? Welcome to NNL Academy, guys. You are here and you will definitely going to be selected in NORCET 9 and 10. बहुत सही जगह बैठे हो, बहुत अच्छी एकेडमी में बैठे हो। अपने लिए 2 लाइन बोलूंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है? My name is Dusha Gupta, BSc Nursing Gold Medalist, selected in NORCET 5, NORCET 6, NORCET 7, NORCET 8, MNS, UPPSC, ESIC and DSSS. सोच रहे होंगे शायद झूठ बोल रही है, पर झूठ नहीं बोल रही, मेरी कॉन्फिडेंस से पता चल रहा होगा। झूठ नहीं बोल रही, बहुत मेहनत की है। 2023 की पास आउट स्टूडेंट हूँ। प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग की थी, क्योंकि नर्सिंग कर भी नहीं थी, कुछ और करना था लाइफ में, बट नर्सिंग चूज कर ली। उसके बाद नहीं पता था कंपटीशन क्या होता है, पढ़ाई कैसे करनी है। एंटर करा, खुद की ठोकरों से खुद सीखा, खुद की मिस्टेक से खुद लर्न किया। एनएनएल की कोचिंग का नाम जब से ही पता था, जब से टारगेट हाइक मेरी फेवरेट बुक थी। टारगेट हाइक के जो लास्ट पेजेस होते हैं उसमें सारे टीचर्स के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन होता है। यूजी प्लान अलग होता है, एमएससी प्लान अलग होता है, और नॉर्सेट का प्लान अलग होता है। नॉर्सेट 7 में रैंक कम थी, मैं यूआर कैटेगरी से हूँ, तो मुझे नहीं मिला था नॉर्सेट, और मेरी जिद थी कि मुझे दिल्ली एम्स ही चाहिए। आई हैव बीन अलॉटेड दिल्ली एम्स इन नॉर्सेट 8, बट मैंने उसको डाटा बाय बाय कर दिया कि ठीक है, आई विल सैटिस्फाई माय ईगो, कि हाँ मैंने अपनी ईगो सैटिस्फाई कर दी कि मुझे मेरे नाम और मेरी रैंक के आगे दिल्ली एम्स चाहिए था, और मैंने वो ले लिया, राइट। और इतनी पढ़ाई करूँ कि इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस आए ना सामने, तो सोचना पड़े अब क्या चूज करूँ, अब मुझे क्या चूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी, एंड those who all are sitting here, not here, one day everybody will be sitting here, और वो जगह खाली होगी। हमें वो जगह खाली करनी पड़ेगी कि हम देखने का कौन। You are sitting on your seat, please manifest। नॉर्सेट में यही मेरी सीट होगी, एक दिन यही बैठूंगा, मुझे भी फेस्टिवेशन के लिए यही बुलाया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर नॉर्सेट 8, नॉर्सेट 9 एंड नॉर्सेट 10। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. So, hello everyone. Very happy to see so many lovely and beautiful faces today. I don't know, everybody has said everything. I think Dr. Mohit sir, Dr. Sakshi ma'am, Savya ma'am, every faculty who is here, who is guiding you, teaching you, giving you some directions, hope, whatever it is, जो भी आपको बता रहे हैं, you need to trust. Very important. Whatever you are studying, you need to trust the source. So I think I will say आप ट्रस्ट कीजिए जो भी नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ आपको पढ़ा रहा है, अकेडमी आपको पढ़ा रही है, whatever content नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ is providing, that is the authentic content, you need to trust that. And definitely बाकी सारा खेल आपका है, हार्ड वर्क आपका है, हम सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मेहनत है वो आपको करनी है। मेहनत, सारे कंटेंट को कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, एवरीथिंग लाइज ऑन यू। सो सिंपल सा यही चीज फंडा है, हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो प्लीज कीप डूइंग हार्ड वर्क, एंड बी इट अर्थ बैच, येलो सफायर, कोरल बैच, एवरी वन ऑफ यू, चाहे किसी का सिलेक्शन हुआ हो नहीं हुआ हो, कुछ ना कुछ आपको सीख जरूर मिली होगी। सो उसको आगे लेके चलिए एंड कोशिश कीजिए, वट एवर नॉट यू आर एइमिंग फॉर, यू नीड टू अचीव दैट। थैंक यू सो मच।
Everyone, welcome to Ashirvad 2025. Thank you everyone for coming here. अभी डॉक्टर सुदीप ने दोबारा बोला स्ट्राइक टेस्ट सीरीज. At present, स्ट्राइक टेस्ट सीरीज की जो इम्पोर्टेंस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो करंट बैच है, जो आने वाला बैच है, प्लीज अंडरस्टैंड. स्ट्राइक टेस्ट सीरीज पे हम आपको बहुत ज्यादा फोकस करवा रहे हैं. क्यों? It is not beneficial for us. It is for you. We have more than 4,000 plus questions. अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप थ्योरी को पूरा, you will turn the pages. So what you need to do is just go through the strike test series. हर दिन 100 questions please target करो. जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे 100 से 200 करो और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. हेलो एवरीवन, आई थिंक सबने आपको गाइड करके दिया है. कुछ लोगों ने आपको अपने एक्सपीरियंस बताया. हमारे मास्टरमाइंड और मेंटर्स ने आपको ये बताया कि आप टेस्ट ज़्यादा दो. मेरा सजेशन आपको ये है कि हर इंडिविजुअल ना, हर स्टूडेंट अलग अलग होता है. ठीक है, किसी ने बोला कि आप बैक बेंचर बन जाओ, किसी ने बोला आप फ्रंट पर बैठ करके पढ़ो. आप अपनी कैपेसिटी को जानो, अपने पोटेंशियल को जानो, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रिपेयर करो. जब हम वीडियोस देखते हैं ना, लाइक हम मूवी देख रहे हैं, तो हमें वो स्टोरी ऐसी याद होती है कि इस मूवी में ये था, इस पर्सन का ये डायलॉग था, क्योंकि हमने उसे कंसिस्टेंटली और फोकस के साथ देखा. जितनी भी वीडियोस आप देखते हो उनको इस फोकस के साथ देखो कि उसे दोबारा आपको देखना ही ना पड़े. और बाकी का जितना भी फोकस है वो सिर्फ आप क्वेश्चंस कर दो. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा. हमेशा कभी अंडरस्टैंड मैं इसलिए पूछती हूँ, and the answer is always awesome. Because अभी मैंने जो आपको बोला था कि the power of manifestation, अभी उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का टाइम आ गया है, अपने माइंड में भी और अपने एक्शंस में भी. ठीक है, अपने बारे में हमेशा कैसा सोचना चाहिए? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सोचना चाहिए, राइट? और वही आपको एक बहुत अच्छा ग्रैंड और एक बहुत अच्छे लाइफ माइलस्टोन कुछ नहीं होता. लाइफ हमेशा एक जर्नी होती है, बहुत अच्छी लाइफ देगा, राइट? Preeti here would be the backbone, and what Preeti is done for the academy, not just for academy, for the NNL app from the very beginning. Right, Preeti was that one single person who has been responsible for the entire tech part of NNL app. So आज जितने बच्चे online देख रहे हैं and online they are able to qualify, all credit goes to Preeti. Hello everyone. First of all, I would like to congratulate all the students जिन्होंने अचीव किया और फुल रैंक लेकर आए, हमारी एकेडमी का नेम फेमस किया. एंड मैं आपके जो हमारे जो लीड प्रो के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं विश करना चाहूँगी, ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी. सी वी ऑल आर विद यू एंड यू नो एट NNL हमारा एक ही मोटो है, योर सक्सेस इज आवर मोटो. तो हम लोग यही फॉलो करते हैं. एवरी डे हम लोग आप लोगों की सक्सेस को के लिए विश करते हैं और उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं एट NNL. तो see, we don't have a control on the issues, but we make sure अगर कोई भी इशू NNL में आया है, we address it in a shortest time and we resolve it. We never see कि it is early in the morning or late in the night, and see, one of the purpose of having Preeti into tech department so that we can always have the best 24/7 support. and मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि कोई भी टेक इशू है तो Preeti just look into it. Hello everyone, good evening to all. First of all, congratulations to topper. आज आप लोगों ने कर दिखाया है and येलो सफायर बैच. आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन तो पहले भी हुआ है. आई रिमेम्बर जब बैच स्टार्ट हुआ था तो मैं यहाँ पर आया था और आप सब लोगों को एक ही डाउट था कि नेट में फीस जो स्टार्ट हुई है समझ नहीं आ रही है चीजें, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं. आगे डाउट और अब आप इस लेवल पे आ गए, उस जर्नी पे आ गए हो, सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो गए हैं. तो इस जर्नी में एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बोली थी और मैं आज भी बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में. और अब जो रिमेनिंग टाइम है, जो 40 डेज बचे हैं आपके नोट सेट के लिए, उसमें आपको दो ही चीजों में फोकस करना है. फर्स्ट वन इज द फास्ट ट्रैक क्लासेस एंड सेकंड वन इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस. जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. और जैसे अर्पिता मैम ने बताया, फॉलो द स्ट्राइक टेस्ट सीरीज. स्ट्राइक टेस्ट सीरीज विल गिव यू द प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ द नोट सेट, जो लाइक एक ब्लूप्रिंट होता है ना कि नोट सेट में ये आएगा. तो जस्ट लाइक किसी ने बोला भी था कि हमारे टीचर्स ही एग्जाम बनाते हैं नोट सेट वाला, तो
तो आई ऑल्सो बिलीव कि ये बात सच है, तो आप उसको फॉलो करो एंड सिक्योर ए गुड ट्रेड। मिलते हैं then, थैंक यू सो मच। Good evening everyone. I'm your Margdarshak. So just want to say all the best. जितना पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, बस उसको रिवाइज कर। 10 जगह जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसको 10 बार पढ़ लो। That will definitely come. ठीक है, इधर उधर नहीं जाना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। I'm not talking about YouTube और Instagram. Currently your distraction is ये पढ़ लेता हूँ, यहाँ का ये पढ़ लेता हूँ, ये सीरीज ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन कर लेता हूँ। नहीं, जो करा है उसके लिए ही टाइम है, इतना करने का टाइम नहीं है। जितना है उतना करो, अच्छे से करो, 10 बार करो, you will definitely clear your nonsense. All the best. बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू और साथ ही साथ सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। देखो, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी बिकॉज सबने बहुत कुछ बता दिया है। तो आई मस्ट से लाइफ इज अ जर्नी और हमें इसे जीते रहना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए, हमेशा कुछ पाने के लिए एक होप हमेशा अपने दिल में रखनी चाहिए। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much guys. In R2, we missed the opportunity to felicitate Dr. Mukone. But today, we are going to, meet that aspiration today. So, I would like to invite Dr. Mukone sir on stage. ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक सब स्टेज। जोरदार तालियां एक बार से जोरदार है। But with a condition, sir, अब भारत
मोटिवेशनल सब पहने हुए हैं जिनको देख के मोटिवेशन आता है। सुधीर सर आपको कभी इन्फेक्शन होने नहीं देंगे। चित्रा मैम को देख देख के मैंने इतनी रिसर्च करी। बैकग्राउंड पे कुछ लगा दो, लाइट का फ्लेयर आ रहा है बहुत ज्यादा। टेड भी देने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मुख सर के आगे बढ़ते एक बार मैम की न्यूट्रिशन क्लास पढ़ते पढ़ते मेरे क्लास में 4 दिन में 2 किलो वजन बढ़ गया। और डायरेक्टर साहब हमेशा मोटिवेट करते ही हैं, कहीं भी आते जाते पूछते बेटा पढ़ाई कैसी हो रही है, हमें मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है। अब हमारे बीच सबीना मैम है, लेकिन सबीना मैम को अपन बीच में लेंगे, लेकिन अभी मुख मोहित सर हैं तो मुख मोहित सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सर आप आए। आपको प्रणाम करता हूँ सर, आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ सर, धूल की एक एक कण को प्रणाम करता हूँ सर, एक एक कण में विराजित द्विगुणों को प्रणाम करता हूँ सर। उन कणों में विराजित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी को प्रणाम करता हूँ। कुल मिलाकर हमारे कम्युनिटी के प्यारे सर मुख मोहित सर आपको इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। वैसे तो जो मेरे बेचमेंट है उनको पता ही है, मैं मेरे गांव का एकमात्र पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो आप सभी को बता दूं मेरे पास 8वीं बी के 4 साल कंटिन्यू 8वीं बी का मॉनिटर का उसकी डिग्री है, और साथ ही जिस प्रकार आजकल के बच्चे पहली दूसरी कक्षा में 99.99% परसेंटेज लेके आते हैं, जिसे लाइक्सोल गारंटी देता है, मेरे पहली कक्षा से 10वीं तक टोटल मिला के इतने नहीं होते। बाकी सब ठीक है सर। अभी सचिन सर कभी साक्षी में, कभी मिथिलेश में, कभी रिसर्च वाले में, सभी को मतलब चित्रा में सभी पे बोले जा रहे लाइनें मारे जा रहे। वो लाइनें सब सर ने उनकी खुद की शादी के लिए लिखी है, तो वो सारी लाइनें यहाँ चिपका देते हैं। मैंने सर से एक दिन पूछा ऐसे जाते जाते कि सर आप शादी क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे सर ने बताया, आप किसी को कहना मत, मुझे सर ने बताया कि वो एक दिन बढ़िया गहरी नींद में सोए तो उनको एक सपना है। सपने में उनका 14 साल का बच्चा था, 15 साल इनकी शादी के हो चुके थे, तो सर ने मुझे बताया कि मैंने एक दिन मेरे बच्चे को डांटा कि वो देख लाल बहादुर शास्त्री तेरी उम्र में 2 गोल्ड मेडल लेके आ गए थे, एपीजे अब्दुल कलाम रोड लाइट के नीचे पढ़ते थे, ये देख वो देख करके 4-5 एग्जाम्पल दे दिए। फिर भाई आई इनके बच्चे की, उनके बच्चे ने कहा कि पापा आपकी उम्र में शहीद फांसी पे चढ़ गए थे, आप क्यों समय खराब कर रहे हो?
सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। नहीं यार, क्या किसी को पता है कि लिथियम का रेंज क्या होगा? मैं तो पढ़ के भूल गई और उसका थेरेपेटिक रेंज भी याद नहीं आ रहा। बड़ी दिक्कत है। गाइस मुझसे तो कुछ मत पूछना, अभी मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ के आई हूँ, मुझे लगता है मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे यार आयुषी, प्लीज मुझे बता दो कैसे करना है इसे। और अगर कोई मुझसे बार-बार थेरेपेटिक लेवल पूछेगा तो उसमें सेनाइड फ्लश कर दूंगी। प्लीज आप ही बता दो मुझे कि कैसे याद करूं इसे मैं। अरे यार सुमन छोड़ ना, ये नोटसेट कुछ नहीं है, बस या तो ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? ऑल ऑफ द अबव ये कहां आता है नॉटसेट? ये नॉटसेट है नॉटसेट। अच्छा पहले तो आता था, कोई नहीं दूसरा तरीका बताता हूँ। ऑल ऑफ द अबव नहीं आता ना, तो जो सबसे लंबा ऑप्शन है ना उसको पकड़ लो। सही बोल रहे हो भैया। पर नॉटसेट सिर्फ नॉटसेट नहीं है, इसे हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। इस तरीके से तैयारी करूंगी तो कभी पास नहीं हो पाऊंगी। गाइस कभी कभार तो मुझे लगता है नॉटसेट के एग्जाम की प्रेप करना एक मूवी जैसा है और हम सब इसके बैकग्राउंड डांसर्स हैं। बस रट्टा मारते रहो और कुछ याद ही नहीं रहता। सीरियसली मुझे लगता है ये नोटसेट ये नोटसेट है, जब भी किताब को नींद आ जाती है। अरे कोई मुझे बताएगा कि सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ एसटीडी क्या होता है? वो भी याद नहीं हो रहा मुझे। Oh my God, don't even get me started on that. उसने तो मुझे सपने में भी ग्लास पहना दिए। अब क्या करूं? याद तो नहीं हो रहा पर करना तो पड़ेगा ही। मुश्किल तो है ही, समझना तो पड़ेगा ही। अच्छा गाइस मुझे ये बताओ आप लोगों ने कितने मॉक टेस्ट कर लिए अटेम्प्ट? मैंने तो एक भी नहीं दिया। मैंने तो 74 नहीं 85 to 90 मॉक टेस्ट कर दिया। हम जा 80 to 90 मॉक टेस्ट इतने लोगों की लाइफ नहीं होती जितने मॉक टेस्ट कर लिए, बस भी नहीं हुआ अभी तक। अरे यार मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो कंफ्यूज करते जा रहे हो आप सब। भैया कुछ मोटिवेशन दो ना। अरे मैं दिखाता हूँ, ये देखो मोटिवेशन रील देखो, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ देखा है मैंने आपका मोटिवेशन, याद है वो एनएसएट में एमबीए में क्वेश्चन आया था। हाँ बिल्कुल सही बताया। एमसीबी का फुल फॉर्म बताया, मोटर व्हीकल एक्ट। छोड़ो मुझे ना रिवाइज करने दो टाइप ऑफ शॉक कंडीशन में। अरे ये कौन से शौक है भाई? हाइपोवोलेमिक मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने तो एक ही शौक सुना है आज तक। कौन सा शौक? चॉकलेट शौक। ये कौन सा शौक होता है? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता, पूरा दिन पढ़ते रहता है। वो पेशेंट नहीं आता इमरजेंसी में जिसका वो ग्लूकोज कम हो जाता है, उसको देते हैं ना चॉकलेट या कुछ मीठा खाने को। अरे यार आप गलत बोल रहे हो। वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होती है पेशेंट की, कोई चॉकलेट शौक नहीं होता। अच्छा ऐसा कुछ है क्या? यार सुमन मुझे कुछ तरीका बताओ हाई रीडिंग टॉपिक्स लर्न करने का। अभी जैसे शौक की बात करी हमने, नॉटसेट 2021 में ये बहुत ही ज्यादा हाई रीडिंग टॉपिक था।